Success will never lower its standard to accommodate us. Success will never lower its standard to accommodate us. We have to raise our standard to achieve it. What we people are supposed to do? We are supposed to raise our standard to achieve the success. With such an inspirational thought, a very good morning and a warm welcome in the class of Accounts Standard 11th. Today we will start with question number 6 of your chapter number 11, Bank Reconciliation Statement. Let us start with question number 6, page number 291. Bank balance as per passbook of Gaurang on 31/3/2016 was 10,000, which does not tally with the bank balance as per cash book. Following information is obtained while comparing passbook along with cash book. Prepare a bank reconciliation statement. Now, as per the passbook, the bank balance is of 10,000, so must be the bank balance as per cash book. But just because of these things, 10, the bank balance as per cash book does not get tallied with the bank balance as per passbook. Now, I have told you to remember these things in your mind. Passbook ka bank balance is on credit side. So, this 10,000 we are going to write on credit side. So, what we are going to write over here is bank balance as per passbook. Bank balance as per passbook is on your credit side. So, 10,000 on credit side. Coming on to question. First transaction. A check of 7,000 is drawn and recorded in cash book but not given to creditor. हमने चेक ड्रॉ भी कर दिया है, कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर दिया है, पर क्रेडिटर को हमने दिया नहीं है. इफ वी हैव नॉट गिवन टू क्रेडिटर, वो पेमेंट के लिए भी जा सकेगा नहीं. दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक. Again, what we will do, as I have told you in my last video of question number 5, आपको क्वेश्चन के टॉप पे दो फॉर्मेट्स बनाकर रखने हैं. दैट इज कैश बुक एंड पासबुक. ओके, check has been drawn. This is receipt, this is payment, this is payment, this is receipt. हमने चेक इशू किया है. 7,000 is on the credit side of your cash book, but it should be on the debit side of your passbook, जो नहीं हुआ है. So we will do right now. हमें क्या लिखना होगा? Number 1, check drawn but not recorded in passbook. Okay, so debit side it will come 7,000 rupees. Next is check of 12,000 was deposited with bank on 29/3/2016, which is credited by bank on 1/4/2016. हमें बैंक ने क्रेडिट कब दिया है? 1/4 को, और हम बना रहे हैं BRS on 31/3, a day prior to what we have got the credit. अगर यही डेट यहां पर 31/3 होता तो ये एरर नहीं होता. नाउ जब हमने BRS बनाया तब बैलेंस 12,000 से डिफर कर रहा था. चेक हमने डिपॉजिट कर दिया है बैंक में. दैट मीन्स हमने कैश बुक में उसको 12,000 रिसिट साइड दिखा दिया है. सेम यहां पर भी आना चाहिए था, आया भी है, बट इट इज ऑन 1/4. नेक्स्ट डे आया है, पर हमने BRS उसके एक दिन पहले बनाया था. 12,000 हमारा रिसिट बैंक में हुआ नहीं है. हमने BRS बनाया है 31 को, और हमें पैसा क्रेडिट मिला है, जमा मिला है ऑन 1/4 को. सो देयर इज द डिफरेंस. डेट और ट्रांजेक्शन नंबर 2. A
check deposited in bank but not credited by bank till 31/3/2016. हमने बनाया है 31/3/2016 को, तब तक हमको बैंक ने क्रेडिट नहीं दिया है, नेक्स्ट डे दिया है. सो नेक्स्ट डे दिया है, इसके लिए हमारा डिफरेंस आ रहा है. दैट्स व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग BRS. ओके, 31/3 को हमको 12,000 क्रेडिट करना पड़ेगा. नेक्स्ट, बैंक हैज पेड 6,000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम विच इज नोन टू गौरांग ऑन 1/4/2016. बैंक ने 6,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है. सो पेमेंट, बैंक ने पेमेंट कर दिया है. कैश बुक में गौरांग को पता नहीं था, उसको पता चला है 1/4 को, और हम बना रहे हैं 31/3 को. पासबुक का पेमेंट इज ऑन डेबिट साइड, कैश बुक का पेमेंट इज ऑन क्रेडिट साइड. यहां पे 6,000 अमाउंट आया नहीं है, which we are going to write in our BRS by writing number 3. हमें लिखना होगा बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम which is not recorded in cash book. कितना? 6,000 in the column of credit. Okay, fine. Next is fourth. A customer has deposited directly with bank 5,000 which is not recorded in cash book. हमारे एक कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा जमा करवा दिया है 5,000. दैट मीन्स 5,000 रिसिट साइड ऑफ पासबुक आ चुका है. कैश बुक का रिसिट में 5,000 अभी तक हमें पता नहीं है. सो कैश बुक में रिसिट हुआ नहीं है. अभी हम BRS में रिसिट साइड लिखेंगे. नेक्स्ट विल बी नंबर 4. We will write a customer has directly deposited in bank but not recorded in cash book. Okay, cash book में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, डेबिट साइड आया नहीं है. So we will do now. Moving further on number 5, bank has credited interest to 200 and recorded in passbook but not recorded in cash book. बैंक ने 200 क्रेडिट कर दिया है. बैंक ने 200 कर दिया है मींस बैंक ने क्या किया है? रिसिट कर दिया है. हमारा रिसिट 200 से होना बाकी है. दैट्स वाई हमें अभी करना होगा डेबिट. What we are going to write? Please check it out. We will write number 5. Bank interest credited by bank not debited in cash book. Okay, डेबिट नहीं हुआ है, अभी हम उसे डेबिट करेंगे. Is this clear? Now, 6th, a check of 6,700 deposited with the bank is dishonored, of which the information is received to us on 1/4/16. Now, check deposit हमने किया था और वो क्या हो चुका है? डिसऑनर हो गया है. पर अभी तक हमें एज ऑन 31/3 जब हम BRS प्रिपेयर कर रहे हैं तब तक हमें उसके डिसऑनर के बारे में कुछ भी पता नहीं था. इसके लिए डिफरेंस आ रहा है. नाउ प्लीज स्टडी ओवर हियर कैश बुक एंड पासबुक. दिस इज रिसिट, दिस इज पेमेंट, दिस इज पेमेंट, दिस इज रिसिट. ओके, व्हाट इज रिटन? 6,000 का चेक हमने डिपॉजिट किया था बैंक में. डिपॉजिट किया था मतलब रिसिट साइड आया होगा.
वो डिसऑनर हो गया है. डिसऑनर मीन्स वी विल रिवर्स द इफेक्ट. फाइन. ये सेम चीज हमें पता चली है 1/4 को और हम हमारा BRS प्रिपेयर कर रहे हैं 31/3 को. बैंक में 6700 पेमेंट साइड आ गया है, कैश बुक में 6700 को आना बाकी है. इज दिस क्लियर? रिसिट साइड में आ गया था पहले ही, वो डिसऑनर हुआ. डिसऑनर मीन्स ऑन दी ऑपोजिट साइड, रिवर्स इफेक्ट उसको देंगे. यहां पर पासबुक में 6700 हो चुका है, पर हमने यहां पर कैश बुक में 6700 ऑन क्रेडिट साइड नहीं दिखाया है, विच विल शो नाउ. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू राइट? चेक deposited in bank is dishonored and we have received information on 1/4/16. ठीक है, इसके लिए हम 67 को ऑन क्रेडिट साइड लिखेंगे. अनदर लैंग्वेज विल बी चेक डिपॉजिटेड इन बैंक इज डिसऑनर्ड, यहां तक भी चलेगा. एंड इंफॉर्मेशन इज नॉट रिसीव्ड टिल 31/3/2016. एनी ऑफ द लैंग्वेजेस यू मे राइट इन particulars, but check it out, it should be correct. Check drawn of 18,000, but out of these, checks of 6,000 were presented for payment till 31/3/2016. हमने टोटल चेक्स कितने के ड्रॉ किए हैं? प्लीज अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. चेक्स वी हैव ड्रॉन, हमने चेक्स ड्रॉ किए हैं 18,000 के. इसके लिए हमने कैश बुक में तो उसको दिखा दिया है. सेम 18,000 से यहां पे भी होना चाहिए था, बट आउट ऑफ दीज मीन्स आउट ऑफ 18,000 ओनली 6,000 वर प्रेजेंटेड, यानी सिर्फ और सिर्फ 6,000 का पेमेंट 31/3 तक आया है. बाकी और पेमेंट कितना आना बाकी है? 12,000 ऑन डेबिट साइड. इज दिस क्लियर? जितने से हमने कैश बुक में क्रेडिट किया है उतने से पासबुक में डेबिट होना चाहिए था. हुआ भी है, बट पार्शियल अमाउंट हुआ है, फुल नहीं हुआ है. हमने टोटल 18,000 के चेक्स ड्रॉ किए थे, उसमें से सिर्फ 6,000 के चेक्स अभी तक एज ऑन 31/3 डिपॉजिट हुए हैं. दैट मीन्स और 12,000 के प्रेजेंट होना बाकी है. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज on 7th transaction, checks drawn of rupees 18,000, but checks of rupees 6,000 are only presented for payment. ओके, चेक्स हमने 18,000 के बनाए हैं, पर आज दिन तक सिर्फ 6,000 के हमने प्रेजेंट किए हैं. दैट मीन्स और 12,000 से बैंक के कॉलम को पासबुक में डेबिट होने की जरूरत है. नहीं हुआ है, वी विल डू राइट नाउ. नेक्स्ट, 8th डेट, checks of 32,000 were deposited with bank, out of which checks of 7,000 are credited in passbook till 31/3/2016. Now checks are deposited, यानी कैश बुक में 32,000 हमने शो कर दिया है. उतना ही यहां पे भी इन पासबुक होना चाहिए था 32,000, बट 31/3 तक कितना पैसा आया है? 7,000 क्रेडिट हो गया है. 7,000 हैज बीन क्रेडिटेड. 32,000 यहां पर कैश बुक में रिसिट साइड है, सेम यहां पर होना चाहिए, अदरवाइज डिफरेंस आएगा. और
32,000 यहाँ पर कैश बुक में आ चुका है। यहाँ पे सिर्फ हमने जब BRS बनाया 31/3 तक सिर्फ 7,000 आया है। स्टिल 25,000 का क्रेडिट होना बाकी है, वो हम अभी यहां पे करेंगे। What we are going to write? Checks of 32,000 deposited, but out of these only checks of 7,000 were credited till 31/3/2016. टोटल 32,000 के चेक्स हमने जमा करवाए हैं, पर आज दिन तक जब तक हमने BRS बनाया only we have got the credit of 7,000, yet we are going to receive 25,000 more credit. Okay, so तब तक तो हमें BRS में ये डिफरेंस शो करना पड़ेगा जब तक हमें बैंक क्रेडिट करे। मूविंग फर्दर, ऑन 9th a check of 1800 was deposited with bank which is not recorded in cash book. चेक हमने डिपॉजिट कर दिया है पर कैश बुक में आया नहीं है। चेक ऑफ 1800 deposited but not recorded in cash book. ओके, अभी तक हमने यहां पर कैश बुक में नहीं दिखाया है। चेक वी हैव डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑफ 1800, यहां पर एंट्री हो चुका है, कैश बुक में होना बाकी है। पासबुक का रिसिट इज ऑन क्रेडिट साइड, कैश बुक का रिसिट इज ऑन डेबिट साइड। 1800 से यहां पे रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, सो ऑन डेबिट साइड वी विल राइट 1800. ओके, मूविंग फर्दर, ऑन 10th बैंक हैज डेबिटेड 20 इन अवर पासबुक फॉर बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. बैंक ने 20 रुपीज पेमेंट हमसे ले लिया है, जो कैश बुक में 20 होना बाकी है. पासबुक का पेमेंट इज ऑन डेबिट साइड, कैश बुक का पेमेंट इज ऑन क्रेडिट साइड. सो वी विल राइट इट ऑन दी क्रेडिट साइड ₹20 by writing in the column of particulars as bank debited charges but not recorded in cash book. कैश बुक में हमने 20 रुपीज से क्रेडिट नहीं किया है. Okay, after the completion of the sum, we will do the same procedure as we have did in earlier questions. हमें total check करना होगा. Total of which side is greater? If we will check, then total of credit side is more. हमें total करना होगा पहले credit का. 10,000 plus 12,000 plus 6,000, 6,700, and even I have continued on this side 25,000. Your total comes to 59,700. हमें इसको लिखना होगा 59,700. We will shift it on the debit side 59,700. Out of the credits हमें सारी हमारे debits को माइनस करना होगा. 7,000 minus 5,000 minus 200. One more is there, minus 12,000, and on this side it is 1,800. The difference is of 33,700. We have started with passbook. We will end with cash book. पासबुक से हमने शुरुआत किया है, कैश बुक पे हम एंड करेंगे. कैश बुक का डेबिट. ओके, कैश बुक का हमें डेबिट चेक करना होगा. कैश बुक का डेबिट इज योर बैंक बैलेंस. सो इन द कॉलम्स ऑफ पर्टिकुलर्स हमें क्या लिखना होगा? बैंक बैलेंस एज पर कैश book is 33,700. Your today's homework is question number 6 plus illustration number 6 of your textbook. Thank you students for listening.